নমস্কার বন্ধুরা, পৌরাণিক চ্যানেলে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগতম। আজকের ভিডিও হতে চলেছে একটু আলাদা। আজ আপনাদের নিয়ে যাব সেই রহস্যময় জায়গায়, যেখানে মৃত্যুকে দেখা যেতে পারে জীবিত অবস্থায় থাকতে থাকতে। এবারে আবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি, আবার বারাণসীর দিকে যাচ্ছি। এবারে নতুন কিছু প্লেস এক্সপ্লোর করব। খুব ইচ্ছে আছে আজকে একটা রহস্যময় একটা জায়গা এক্সপ্লোর করার জন্য। तो ऐसे लोग मतलब जिनको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता, इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी 6 महीने के अंदर जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ধীরে ধীরে এগোই। এবারে আমরা জাস্ট বেরোলাম, এখন ঘড়িতে বাজে 9:12। রহস্যময় এবং অতি পবিত্র সেই স্থান আছে বারাণসীতে। এই স্থানের নাম চন্দ্রকূপ। শ্রী শ্রী বাবা চন্দ্রেশ্বর মহাদেব বিরাজ করেন এখানে। এখানে যাওয়ার জন্য অটো বা টোটোতে করে প্রথমে যেতে হবে শ্রী শ্রী শঙ্কটা দেবী মন্দিরের কাছে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় 700 মিটার দূরত্বে রয়েছে শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দির। গুগল ম্যাপের সাহায্যে এবং পথ চলতি মানুষদের সহায়তায় অনেক অলি গলি পেরিয়ে অবশেষে আমরা পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্যে। অনেকগুলো গলি পেরিয়ে এবার আমরা অবশেষে বেশ কিছুটা হাঁটার পরে এখানে এসে পৌঁছেছি এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে। এর ভেতরেই রয়েছে আমাদের সেই গন্তব্য, যেটা হচ্ছে সেই রহস্যময় জায়গা, যার নাম হচ্ছে চন্দ্রকূপ। প্রথমে দূর থেকে দেখে বোঝাই যায় না এমন এক রহস্যময় কুণ্ড থাকতে পারে এখানে। মেন মন্দিরের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের চোখে পড়ে এই রহস্যময় চন্দ্রকূপ। তবে চন্দ্রকূপের সম্পর্কে জানার আগে চলুন প্রথমে মাতা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে আসি। ইনি হলেন মাতা সিদ্ধেশ্বরী। আসুন মাতা সিদ্ধেশ্বরী দেবী এবং এই মন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা জেনে নিই শ্রী দীনেশ দ্রোণের শ্রীमुख থেকে। ये सिद्धेश्वरी माता स्वयंभू देवी हैं और ये अति प्राचीन देवी हैं। और नवदुर्गा में जो दुर्गा का 9 स्वरूप होते हैं, उसमें ये इनका 9वां स्वरूप आती है। नवमम सिद्धिदात्री, तो इनका ये जो है 9वां स्वरूप है। और ये माता सिद्धेश्वरी अनादिकाल से हैं। जब पहले सूर्य चंद्र भी जब से नहीं है, उससे पहले से ये माता यहाँ विद्यमान है। और ये स्वयंभू है, अपने आप से प्रकट हुए हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग, ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है, तो यहाँ ऐसे बहुत से लोग जिनको 8 सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर सूक्ष्म शरीर में आज भी विद्यमान है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थान है। तो माता सिद्धेश्वरी का दर्शन नवरात्रि में 9 दिन, नवदुर्गा नवरात्रि में 9वें दिन इनका दर्शन होता है। और यहाँ पर जब कौरव पांडव युद्ध हुआ था, तो पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। उस अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आए थे और इनका पूजन अर्चन करने के बाद पांडव युद्ध करने के लिए आगे गए थे। और ठीक माता जी के नीचे एक शिवलिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग चंद्रेश्वर के नाम से है विख्यात है। ये चंद्रेश्वर का ही स्वयंभू शिवलिंग है। तो इनकी ये भी अति प्राचीन शिवलिंग है। तो इनके यहाँ पर जो भी पूजन, और एक चंद्रेश्वर शिवलिंग इसी मंदिर में और है, जो कि ये तो स्वयंभू चंद्रेश्वर शिवलिंग हुआ। और जो एक चंद्रेश्वर शिवलिंग और है, वो इन्हीं की प्रेरणा से चंद्र भगवान ने उनकी स्थापना की हुई है। तो यहाँ पर जो भी पूजन अर्चन होता है,
वो अभी मैं उसके बारे में आपको आगे दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। यहाँ एक चंद्रकूप है, उस चंद्रकूप के जल से ही यहाँ जो भी देवी देवताओं का ये जो जितने शिवलिंग हैं, चंद्रेश्वर महादेव है, इनका पूजन अर्चन होता है, उनको स्नान वगैरह जो होता है उसी चंद्रकूप जल से होता है। और फिर वापस वो जल उसी चंद्रकूप में जाता है। और ये चंद्रकूप मणिकर्णिका, गंगा जी के मणिकर्णिका घाट से जुड़ा हुआ है। तो बाद में ये मणिकर्णिका के रास्ते ये जल गंगा जी में जाता है। गंगा जी का जल इस कूप में नहीं आता, इसका जल कूप में जाता है, क्योंकि ये कूप गंगा जी से बहुत पहले का है। মাতা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে প্রবেশ করলেই এক পজিটিভ ভাইব্রেশন অনুভব করতে পারবেন যে কোনো মানুষ বলেই আমাদের বিশ্বাস। চন্দ্রকূপের এই জল সেবন করলে সেরে যায় দুরারোগ্য সমস্ত রোগ। স্থানীয়দের থেকে কথা বলে জানতে পারলাম গভীর রাতে কে যেন খড়ম পায়ে হেঁটে বেড়ান এই মন্দিরে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে শোনা যায় কেউ বা কিছু যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল এই কুয়োর জলে। শ্রী দীনেশ ত্রোন বললেন, অনেক উচ্চকোটির সাধু মহাত্মা ধ্যান করে চলেছেন এই মন্দিরের সূক্ষ্ম দেহে, এবং এই মন্দিরের ঠিক নিচেই নাকি রয়েছে এক গুপ্ত কক্ষ, যেখানে সূক্ষ্ম দেহে বিরাজ করেন এই সাধু এবং মহাত্মাগণ। আসুন এবারে জেনে নিই এই মন্দিরের মূল আকর্ষণ এই চন্দ্রকূপ এবং মৃত্যুর আগাম পূর্বাভাস কিভাবে পেয়ে থাকেন অনেকে এই কূপ থেকে তার সম্পর্কে। इस चंद्रकूप को चंद्र भगवान ने अमृतोत कूप के नाम से बनाया था, जिसको चंद्र भगवान ने बनाने के कारण इसका नाम चंद्रकूप से के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इस कूप का जल ही यहाँ पूजन और भगवान देवताओं को चढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इस कूप के जल में बहुत प्रकार की औषधियाँ हैं। ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो कि आपके पेट से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग, इन सब के लिए ये बहुत कारगर हैं। अगर इनका रोज सेवन किया जाए इस कूप के जल का, तो त्वचा संबंधित रोग और पेट से संबंधित जितने रोग हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। और जिनको नहीं है उनको भविष्य में कभी होंगे भी नहीं ऐसे रोग। और जो आप इसका डायामीटर, गोलाई जो आप देख रहे हैं ऊपर से 5 फीट 9 इंच, ये डायामीटर इसका एक्चुअल डायामीटर नहीं है। इसका एक्चुअल डायामीटर लगभग 16 से 18 फीट तक है। उसी कूप के ऊपर ये एक आंगन बना हुआ है। ये पहले कभी कुंड की तरह था, जहाँ जाने के लिए किसी समय में सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो सीढ़ियाँ बंद हैं, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है। जो कि सीढ़ियाँ का यहाँ से मैं दिखा देता हूँ उसको। इस स्थान से ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जहाँ से पहले के समय में लोग दर्शन करने, ये उनका कूप में स्नान करने के लिए, कुंड उस समय कुंड का रूप था, कुंड में स्नान करने के लिए जाया करते थे। और इस वक्त
ये जैसा कि मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है, और जिस स्थान पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये स्थान नीचे आप दिखा, जिस स्थान पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है, और जिस स्थान पर हम खड़े होकर इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उसके नीचे एक मंजिल और है, उसमें 7 करोड़ सिद्ध लोग हैं। और एक विशेष बात और है कि इस चंद्रकूप के जल में, ये बहुत साफ जल है, इसके अंदर ये ऊपर से जब नीचे तक लगभग 100 फीट इसकी वो है गहराई है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा तल तक। तो इस कूप में जब आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो उसके अंदर आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना प्रतिबिंब अगर नहीं दिखाई पड़ता है, तो ऐसे लोग मतलब जिनको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता, इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी 6 महीने के अंदर जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है, होने ही वाली है, उन्हीं को अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसके डर की वजह से बहुत से लोग अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर रोज आकर इस कूप के अंदर अपना प्रतिबिंब देख के इस कूप के जल का सेवन रोज करिए, तो और चंद्रेश्वर जी को ये जल चढ़ाइए, तो वो मृत्यु टल सकती है, टल जाती है। তাহলে বন্ধুরা, কেমন লাগলো আপনাদের আজকের এই রহস্যময় ভিডিও তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানান।